So Jai Hind to everyone. So in the lecture series of artificial intelligence, today we'll discuss about the software architectures. Of course, you know very well what is the architecture. Architecture is basically a designing of a system, how we are declaring that system, how we are forming that system. So we should have a certain architecture, we should have a certain skeleton formation to represent that system. You're getting architecture is the way of representation, the way of the block representation, that how the formation will happen. You've read about the OSI model, you have read about the OSI architecture, and many more architectures you have read. And on the behalf of that OSI architecture, your networking, if I'm talking about, your networking architecture follows all those protocols is following only the OSI model, isn't it? So similarly, in the software, we are having certain architectures which are following the flow of the information for having the communication between the systems. So what are these we will see today? So software architectures are formally a description of elements from which a system is built and the manner in which they communicate. So we are having a skeleton formation. जिस तरीके से हमें काम करवाना है, कैसे वो फॉर्मेशन होनी है, कैसे वो स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे वो डिजाइन होगा, that is basically your architecture. So it's mentioned here, a number of common architectures exist that go by the name pipe and filter or layered architecture. I had given an example previously about the OSI architecture. It's a layered architecture. That means we are having the 7 layers of formation, the physical layer, the data link layer, and many layers we are present, the presentation layer. Though these layers one by one, we are following those layers and all those following layers, and we'll have the outcome opposite to that similar layers. So that is a pipe and filter architecture, that we are flowing our data and we're getting the data, isn't it? So this defines the interconnection between the components. How the interconnection between the components is happening, definitely it can be declared by the help of your architecture. So the pipe and filter defines a model where data is moved through a set of one or more objects that perform a transformation. So pipe and filter, that means just like a pipe, a hollow pipe, you are having sending the information, and of course the information which is not having a noise. We are filtering that information, we are sending a complete proper information through a pipe, through a channel to get the proper outcome. So layered simply means that the system is comprised of a set of layers that provide a specific set of logical functionalities, and that connectivity is commonly restricted to the layers contiguous to one another. Definitely, one layer is attached to the second layer. One output is the input of the second layer. So as we know, layer one by one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, all these are the layers. From the one we are getting the output, we will move on to the second one. Similarly, the second output will move as an input to the third layer. So these layer formation will transfer the information one by one, doing the filtration process and giving the proper outcome for that. So there are certain architectures for that. There are a number of architectures. We will study one by one about these architectures. The first one is a reactive architecture, then deliberative architecture, then blackboard architecture, then belief, desire, intention architecture, then hybrid architecture, and then your mobile architecture. So what is reactive architecture? As the name declares, reactive, immediate reaction. So whenever we are having the combination of two chemicals, it will give the reaction, isn't it? Similar in this case, we are having a proper reaction. We are having a certain reaction. Reaction होगा ही होगा, कुछ formation होगा ही होगा, कुछ काम होगा ही होगा. It's the first point says that it is a simplest architecture for the agents. यानी कि कोई भी काम कैसा भी होगा. एजेंट्स कौन होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी प्रीवियस एग्जांपल्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है. एक सिंपल से हम बात करते हैं, एक ट्रेवलिंग एजेंट होता है, एक LIC एजेंट होता है. एजेंट का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करके काम को खत्म कर दे. ठीक है. ऐसे ही आपके यहाँ हम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं या हम AI एजेंट्स की बात करते हैं, वो एजेंट्स आपको हेल्प करते हैं आपके काम को फिनिश करने में, आपके काम को जनरेट करने में, आपके काम को वाइंड अप करने में. ठीक है. तो उन्हीं एजेंट्स की हम बात करें, वो जो एजेंट्स हैं आपके कुछ आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे ताकि हम उस काम को फिनिश करवा सकें या काम करवा सकें उसका. इट्स मेंशन्ड हियर, in this architecture, agent behaviors are simply a mapping between a stimulus and the response. Whatever reaction we're getting. अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल हम रोबोट्स के बार बार एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहे हैं. मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है. एक रोबोट है, जब मैंने आपको बताया कि उसके सामने एक मैंने रोबोट डिजाइन करा है और उसके पास मान लीजिए एक पर्पल बॉल आती है. ठीक है, एक पर्पल कलर की बॉल है. दैट मीन्स उस रोबोट में मैंने इनपुट फीड कर दिया है कि बॉल यानी कि शेप ऑफ द बॉल, इट इज अ सर्कुलर बॉल एंड द कलर इज द पर्पल.
यानी दोनों ही चीजें आपकी मैंने फीड कर रखी हैं कि जैसे ही इस टाइप का ऑब्जेक्ट उस रोबोट के सामने आएगा तो वो क्लैप करना शुरू कर देगा या कोई नॉइज निकालना शुरू कर देगा। यानी दो इनपुट्स उसने लिए, उन दोनों इनपुट्स की हेल्प से उसने आउटकम जनरेट करा और उसने क्लैप करना शुरू कर दिया। सिमिलरली अगर इसकी जगह मैं पर्पल कलर का कोई बॉक्स रख देती हूँ तो डेफिनेटली वो जो रोबोट है वो शेप जो है उसको पता है मुझे शेप जो सर्कल शेप ही मुझे इमेजिन करनी है या मुझे वो इनपुट में वही लेनी है, यहाँ मुझे सर्कल शेप नहीं मिल रही है, तब वो क्या करेगा, वो आपकी नॉइज जनरेट नहीं करेगा या वो क्लैप नहीं करेगा या कोई भी म्यूजिक नहीं निकालेगा वो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जब हम इंफॉर्मेशन को हम फीड कर रहे हैं तब क्या है, वो आपका एक प्रॉपर एक स्ट्राइक हो रहा है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद वो स्पार्क कर रहा है, वो एक स्टिमुलस जनरेट कर रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाटएवर द इनपुट्स वी आर गेटिंग, वी आर थ्रोइंग दैट स्टिमुलस एंड वी आर गेटिंग रिस्पॉन्ड फॉर दैट। ठीक है, एक सेट कर दिया हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू, उस वैल्यू के बाद जब उसने थ्रेशोल्ड वैल्यू, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया, उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू आपकी क्या है, द पर्पल कलर एंड द शेप ऑफ दैट द बॉल। ठीक है, तो उसमें हमारे थ्रेशोल्ड हमने इन दोनों चीजों को सेट करा है, उसके बाद क्या करा, उस स्टिमुलस को सेंड किया गया ताकि हमारे आउटकम को हम जनरेट कर सकें। So that is the stimulus. So it's mentioned here, agent behaviors are simply a mapping between the stimulus and the response. The agent has no decision making skills. वो खुद ब खुद कोई डिसीजन नहीं लेगा, जो आपने दिया सिंपली वो बाहर आपके आउटकम जनरेट कर देगा। वो उसके पास खुद का कोई सोच नहीं है, कोई ट्रेनिंग डेटा सेट नहीं है, कोई टेस्टिंग डेटा सेट नहीं है, सिंपली एक डेटा है जिसको आपने फीड करा एज एन इनपुट, उस इनपुट के बिहाफ पर उसने कुछ स्टिमुलस जनरेट करा और आपको सिंपली उसने रिस्पॉन्स कर दिया। वो खुद का कोई लॉजिक नहीं लगाएगा। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है या पास्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास कुछ भी है, अगर सेम इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करेगा। करंट इन्फॉर्मेशन जो आपने फीड कर रखी है, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे सिंपली वो आउटकम को जनरेट करेगा। तो दैट इज व्हाई इट्स मेंशन क्लियरली itself no decision making skills, वो कोई और डिसीजन नहीं लेगा, only reaction to the environment in which it exists। जिस एनवायरमेंट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है, सिंपली वो आउटकम जनरेट कर देगा। ठीक है बेटा, so it's mentioned here, fourth point says that the agent simply reads the environment and then maps the state of the environment to one or more actions. Given the environment, more than one action may be appropriate and therefore the agent must choose. So overall summing up that is that environment के behalf पे reaction देना, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए मुझे घर से कॉलेज आना है और उस टाइम पे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ तभी के तभी बारिश आने की संभावना हो जाती है, द वेदर गेट चेंज्ड, आपकी जो हवाएं हैं वो तेज से चलनी शुरू हो जाती है, तूफान आना शुरू हो जाता है और मुझे पता है कि बारिश आने वाली है, तो दैट मीन्स मुझे लेकिन कॉलेज तो पहुंचना ही पहुंचना है। नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई द वे थ्रू विच आई कैन रीच द कॉलेज। आई कैन कम बाय a car, I can come by a scooty, I can have the pulling of the car, I can come by bus. So there are certain ways to reach that the college. तो मैंने क्या करा है, environment से मैंने कैप्चरिंग करी, मैंने गेस करा कि बारिश होने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली मुझे स्कूटी से ट्रेवल नहीं करना है। एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर मैंने इमीडिएटली एक्शन क्या लिया, आई स्विच टू द कार, आई हैड टेकन द अम्ब्रेला, मैंने उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके मैंने रिवर्ट बैक एनवायरमेंट में रिस्पॉन्स करा। मैंने एनवायरमेंट में क्या रिस्पॉन्स करा, आई हैड टेकन द कार, मैंने कार पूल करा और मैं अपने कॉलेज को रीच गए। सो वट एवर द एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन मैंने कैप्चर करके आउटकम दिया, दैट इज अ रिएक्टिव आर्किटेक्चर। सिंपली कोई और डिसीजन नहीं, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, जैसे अभी मैंने कहा करंट में बारिश का एटमॉस्फेयर है, मैंने ये नहीं सोचा कि पहले कभी बारिश हुई थी तब मैंने क्या क्या किया था या मुझे आगे आने वाले टाइम में क्या क्या करना चाहिए, करंट में जो सिचुएशन आकर हुई उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट रिएक्शन जो हुआ, दैट इज द आउटकम ऑफ दैट सिंपल reactive architecture. So I hope with this basic example you get cleared. Reactive architecture is simply whatever input you are getting on the behalf of the stimulus, it is giving the response. Clear? So the advantage of reactive architecture is that they are extremely fast. Of course fast तो है ही क्योंकि simply stimulus करा और उसका response करना शुरू कर दिया. This kind of architecture can be implemented easily in hardware or fast in the software lookup. यानी कि ऑफकोर्स फास्ट है आपके और जल्दी जल्दी हम हार्डवेयर में भी सॉफ्टवेयर में दोनों जगह इसको आराम से हम यूज कर सकते हैं। द डिसएडवांटेज इज दैट इट इज अप्लाई ओनली टू सिंपल एनवायरमेंट्स, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक सा मॉडल है, सिंपल एनवायरमेंट से इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके वो आउटकम को जनरेट करेगा। तो यानी जहाँ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वहां पर हम इसको डेफिनेटली अप्लाई हम नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, 8th पॉइंट सेज दैट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ स्टेट विच इज नॉट एनकोडेड। क्योंकि मैंने आपको कहा, जैसे मैंने आपको एक्शन बताया था, मैंने एक्शन क्या था, बारिश हो रही है, मैंने इमीडिएटली अम्ब्रेला लिया या मैंने कार को पुल करा, तो ये मैंने एनवायरमेंट से मैंने एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैंने रिस्पॉन्ड करा। तो वो जो आपके प्रेजेंस ऑफ स्टेट है उसी के साथ कैप्चरिंग करके आपका जो रिएक्टिव आर्किटेक्चर है वो काम करना शुरू कर देगा।
Next one is the deliberative architecture. It is the enhancement of the reactive architecture. So what is deliberative architecture? As the name implies, it one that includes some deliberation over the action to perform given the current set of inputs. जो मैंने current input दिया है उसके साथ साथ कुछ और information को भी वो लेके अपने outcome को generate करेगा. Instead of mapping the sensors directly to the actuators, the deliberative architecture considers the sensors, the state, prior results of given action and other information in order to select the best action to perform. जैसे कि अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर बारिश हो रही है और मैंने वेदर से, क्योंकि तूफान आना शुरू हो गया है, मौसम में वेदर जो है वो हवाएं तेज से चलनी शुरू हो गई थी, तो मुझे क्लिक हो गया कि बारिश होने के चांसेस हैं, तो मुझे स्कूटी से नहीं आना कॉलेज, मुझे कार से आना है. ठीक है, मैंने अम्ब्रेला ले लिया, मैंने कार पूल करने का प्लान कर लिया. अभी मैंने सोचा कि मैं कार पूल कर मैं ओला में बुक कर लेती हूँ. लेकिन मैंने फिर क्या करा, मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को मैंने रिकॉल करा. मैंने सोचा कि अगर मैं ओला बुक करती तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा, या हो सकता है कि ओला की सर्विस खराब हो या व्हाटएवर. कुछ ना कुछ इशू मेरा जो प्रीवियस था वो मेरे को दिमाग में मेरे स्ट्राइक होगा, और उस प्रीवियस इन्फॉर्मेशन की ब्याह में मैं ये क्लिक करूंगी कि मैं फास्टली कॉलेज कैसे पहुंच पाई थी. मैंने किसी के अपनी खुद की कार मैंने ले ली थी, या मैंने कार पूल करके मैं पहुंची थी. तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर भी जो मैंने आउटकम को जनरेट करा, करंट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द पास्ट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके जब मैंने आउटकम को जनरेट करा, दैट इज योर deliberative architecture. That is why it's mentioned here that the sensors, the state, the prior results of a given actions and other information in order to select the best action to perform. ठीक है, so it says that the mechanism for action selection as is undefined. This is because it could be a variety of mechanisms including a production system, a neural network or any other intelligent algorithm. We can use anywhere. Advantage of deliberative architecture is that it can be used to solve much more complex problems than the reactive architecture. Reactive आपका simple था, यहाँ पर हम कई informations को capture करके हम outcome generate कर रहे हैं, so definitely it's more effective. It can perform planning and perform sequence of action to achieve a goal. The disadvantage is that it is slower than the reactive architecture due to the deliberation for the action to select. Definitely, क्योंकि disadvantage क्या है, यहाँ पर हम कई जगह से इनपुट को ले रहे हैं, वो सोचेगा, दिमाग लगाएगा, कुछ डिसीजन लेगा, तो टाइम आपका इसमें कम लगेगा. इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन. अगर हम दोनों की बात करें, दोनों ही आर्किटेक्चर का आपका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर शो कर रखा गया है. फर्स्ट वन इज द रिएक्टिव आर्किटेक्चर. रिएक्टिव आर्किटेक्चर में क्या है आपका, हमारे पास सेंसर्स हैं, हमारे पास एक्चुएटर्स हैं जो आपके एक्शन परफॉर्म करते हैं. सिंपली सेंसर्स से इंफॉर्मेशन को परसीव किया गया, परसीव करने के बाद इंफॉर्मेशन मैप करने के बाद सिंपली एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन आगे दे दी गई. दैट इज सिंपली योर रिएक्टिव आर्किटेक्चर. और यही अगर हम डेलिबरेटिव आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, डेलिबरेटिव आर्किटेक्चर में आपके पास सेंसर्स हैं, सेंसर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन गई, प्लस जो इन्फॉर्मेशन उसके पास कोई स्टेट इन्फॉर्मेशन थी, कोई नॉलेज थी प्रीवियस उसके पास, या कुछ उसके पास कोई और इन्फॉर्मेशन कहीं पर स्टोर थी, गोल्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, गोल्स है, नॉलेज है या स्टेट है, जो भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन उसके पास स्टोर थी, उन सब जगह से इन्फॉर्मेशन को लेकर एक्शन सिलेक्शन के पास गया, और उसके बाद यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेकर उन्होंने एक्चुएटर्स को दे दिया टू परफॉर्म दैट एक्शन. ठीक है बेटा, so that is a simple block diagrammatic representation for that. Blackboard architecture, it is a very common architecture that is also a very interesting. As a name declares blackboard. Blackboard क्या होता है, blackboard वो जगह होती है जहाँ हम सारे पॉइंट्स को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं. तो ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर क्या करेगा, हम कोई भी काम करेंगे, कैसा भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम यहाँ से वहां भी अगर हम जा रहे हैं तो वो भी पॉइंट हम ब्लैकबोर्ड पर लिख देंगे. जैसे हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, या हम बात करते हैं प्रोसेस की, हम बात करते हैं, मेरा एक प्रोसेस इस टाइम पे चल रहा है, मैंने लिखा मेरा ये P1 प्रोसेस आपका चल रहा है, P2 प्रोसेस अभी खाली पड़ा है, P3 प्रोसेस आपका ये चल रहा है, या P3 प्रोसेस का मैंने P4 के मैंने आगे लगा दिया है. तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम ब्लैक बोर्ड पे ईच एंड एवरीवेयर हम मेंशन करते हैं क्लियरली. ठीक है, इट्स मेंशन अ हिस्ट्री अबाउट दैट. द फर्स्ट ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर वाज Heresy 2, which was a speech understanding system. This architecture operates around a global work area which is called a blackboard. The blackboard is a common work area for a number of agents that work cooperatively to solve a given problem. ठीक है, so the blackboard therefore contains information about the environment but also intermediate work results by the cooperative agents. यानी मैंने आपको बताया environment से भी information को लेकर, और जो भी कहीं से information, कुछ भी information है, वो सारे हम thoroughly हम blackboard पर mention कर देंगे, हम clearly वहाँ पर declare कर देंगे. In the example, two separate agents are used to sample the environment through the available sensors, that is a sensor agent, and also through the available actuators, that is an action agent.
उन दोनों एजेंट्स को हम यूज करेंगे फॉर कंक्लूडिंग अवर फाइनल आउटपुट. So the blackboard contains the current state of environment that is constantly updated by the sensor agent, and when an action can be performed, that means the action agent translates the action into a control of the actuators. So that means ब्लैकबोर्ड क्या करेगा, जबकि करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट है वो रखेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रोसेस के बारे में मैंने बताया, ये प्रोसेस आपका फ्री है, तो इस प्रोसेस को मैं यूज करके मैं कहीं और यूज कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फैकल्टी, मेरा टाइम टेबल डिक्लेयर्ड है कि मेरे यहाँ ये वाला जो स्लॉट्स है वो स्लॉट्स मेरे बिजी हैं. अब जो बाकी के स्लॉट्स है वो स्लॉट्स मेरे कहीं और भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं, या मैं उसको कहीं और भी यूज कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने रिकॉर्डिंग के लिए एक स्लॉट को यूज करा, या मैंने एक अपने रिसर्च के लिए अपना मैंने 1 घंटा यूज कर लिया. तो वो जो स्लॉट्स हैं, जो मेरे फ्री स्लॉट्स हैं, वो फ्री स्लॉट्स मेरे वहां पर मेंशन है, मेरे बिजी स्लॉट्स भी मेंशन है. उन स्लॉट्स को मैंने कहाँ का यूटिलाइज करा है, कैसे कैसे यूटिलाइज किया, ईच एंड एवरीथिंग इज बीन मेंशन, ताकि हम उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके. The control of the agent system is provided by one or more reasoning agents. ठीक है, आप जो भी जितने भी आप एजेंट्स यूज कर रहे हैं, उन एजेंट्स की हेल्प से ही हम अपने आउटकम को जनरेट करेंगे. These agents work together to achieve the goals which would also be contained in the blackboard. क्योंकि मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, ब्लैकबोर्ड पे हमें हर चीज मेंशन करनी, चाहे वो गोल है, चाहे आपका करंट स्टेट है, चाहे आपकी प्रीवियस स्टेट है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी ब्लैकबोर्ड पर डिक्लेयर होनी चाहिए. So in this example, the first reasoning agent could implement the goal definition behavior, where the second reasoning agent could implement the planning portion to translate the goals into the sequence of actions. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि मेरे स्लॉट्स जो है, मेरे टाइम टेबल के जो स्लॉट्स हैं वो मेरे मेंशन हैं, कौन सा आपका फ्री है, कौन सा आपका बिजी स्लॉट है आपका. अब वो जो स्लॉट्स हैं, डेफिनेटली आई कैन हैव द प्लानिंग कि मेरे जो फ्री स्लॉट्स है इसको मैं प्लान करके रख लूँ कि अब मेरे स्लॉट्स को मैंने कहाँ कहाँ यूज करना है, तो मेरे क्या क्या आगे क्या क्या मुझे काम कैसे कैसे उसको आउटकम को जनरेट करना है. तो वो सब चीजें मेरी ब्लैक बोर्ड पर डिक्लेयर्ड होंगी और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली. ठीक है बेटा. Since the blackboard is a common work area, coordination must be provided such that agents don't step over one another. क्योंकि मैंने कहा हम एक ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक ओपन ब्लैकबोर्ड हमने दे दिया जहां हम सब चीजों को प्रॉपर्ली हम डिक्लेयर करें, हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, isn't it? तो वो जो हम डिक्लेयर करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कभी भी किसी भी प्रोसेस को यूज करे. जैसे मैंने अभी कहा, जो मेरे स्लॉट्स आपके वेकेंट हैं, उन स्लॉट्स को मैंने कहा कि मेरा ये स्लॉट मेरा फ्री है, चलिए मैं इसको मैं रिकॉर्डिंग में यूज कर लेती हूँ, या जो मेरा ये वाला स्लॉट फ्री है इसको मैं रिसर्च में यूज कर लेती हूँ. बट मे बी पॉसिबल वो जो मेरा स्लॉट फ्री था वो मैंने प्लानिंग तो करी कि मैं उस स्लॉट में ये काम करूं, बट बाय द डिपार्टमेंट मुझे कोई और वर्क असाइन कर दिया गया. तो वी शुड नॉट हैव द क्लैशिंग फॉर दैट, वी शुड हैव द क्लियर डिक्लेरेशन अबाउट दैट पार्ट. फाइन. सो इट्स मेंशन्ड हियर, फॉर दिस रीजंस agents are scheduled based on their need. For example, agents can monitor the blackboard, and as information is added they can request the ability to operate. यानी कि सारा का सारा ब्लैकबोर्ड को मैनेज किया जाएगा, शेड्यूलिंग भी मैनेज की जाएगी, कब कब क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, और वो सब इन्फॉर्मेशन भी आपकी ऐड की जाएगी ताकि कोई भी इश्यू ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आउटकम को जनरेट करने में. ठीक है बेटा. The scheduler can then identify which agents desire to operate on the blackboard and then invoke them accordingly. यानी कि शेड्यूलर हमने शेड्यूलिंग कर दी है, हमने बता दी कौन कौन सा प्रोसेस कब कब काम करना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन कर सके, हम काम करवा सके. The blackboard architecture with its globally available work area is easily implemented with a multi-threading system. Threads, you know, a small program, और definitely अगर मैं multiple tasks चाहती हूँ parallelly consume करवाना, तो definitely हमें देख के scenario को we have to utilize that part. Each agent becomes one or more system threads. For this perspective, the blackboard architecture is very common for agent and non-agent system. That means आपके हर काम के लिए आपका एजेंट अलग अलग हो जाएगा. जैसे छोटे छोटे काम के लिए भी we are having different agents for that. वो एजेंट्स आपके अलग अलग काम करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग की तरह काम करेंगे, पैरेलली काम करेंगे. यानी कि ऐसा ना हो कि हम एक काम फिनिश हो फिर दूसरा काम शुरू, नहीं. अगर पॉसिबिलिटी है तो हम पैरेलली भी उस काम को कंज्यूम करवा सकते हैं. So that is the representation of the blackboard architecture. It's a block diagram representation. It's mentioned here. We are having the environment again. We are having the sensors. We are having the actuators. यहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन गई आपके ब्लैकबोर्ड के आर्किटेक्चर के पास, और यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है रीजनिंग एजेंट के पास भी जा रही है, ताकि हम गेस वर्क लगा सके, या जो भी हमें फ्यूचर के लिए असाइन करने हैं काम, शेड्यूलिंग करवानी है, वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से कैप्चर करके स्टोर कर सके, और उसके बाद अपने एक्शंस को हम प्रॉपरली परफॉर्म कर सके. ठीक है बेटा. Next is your belief, desire and intention architecture. What is BDI architecture? Belief, desire and intention architecture. ये different हैं आपके. We will see that it follows the theory of the human reasoning as defined by the Michal Bratman.
बिलीफ रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द वर्ल्ड बाय द एजेंट, किस तरीके से आपका वो दिखाया जा रहा है, पहले तो वो है what it believes to the state of the environment in which it exists. Desires are the goals that defines the motivation of the agent, that means what it wants to achieve. ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्या हमें अचीव करना चाहते हैं, वो है हमारी डिजायर. The agent must have the numerous desire which must be consistent. एक आपके फिक्स होने चाहिए, जो आपके डिजायर्स आपने डिसाइड करे हैं, जो एनवायरमेंट के व्यू के भी आपने डिसाइड करे हैं, वो आपके फिक्स होने चाहिए. Finally, intention specifies that the agent uses the belief and desires in order to choose one or more actions to order to meet the, of course, whatever we are expecting. जो भी हमारा आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम आपको प्रेजेंट होना चाहिए. The BDI architectures are defined the basic architecture of any deliberative agent. It stores representation the state of the environment, that means the belief, maintains a set of goals, and finally an intentional elements that maps desires to the belief. यानी आपके पास beliefs हैं, आपके पास आपकी desires हैं, उन दोनों को मिला के जो हम चाहते हैं हमारा आउटकम जनरेट होना, जो हमारा फाइनली इंटेंशन जो हमारी निकालने की है, वो हमारी हेल्प करेगा, वो BDI आर्किटेक्चर हेल्प करेगा. हम क्या चाहते हैं, हमारे पास क्या अवेलेबल है, हम किस तरीके से चाहते हैं, उन तीनों को मिला के आपके एनवायरनमेंट की हेल्प से वी कैन हैव दी working on that, we can perform certain actions on that, that means one or more actions that modify the state of the environment based on the agent's needs. यानी कि जो मैंने आपसे कहा इनपुट डेलिबरेटिव आर्किटेक्चर में क्या था, वो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर भी डिटेक्ट कर रहा था, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा था. इसमें क्या है, वो हमारे डिजायर्स के बिहाफ पर, हमारे इंटेंशंस के बिहाफ पर, हमारे बिलीफ के बिहाफ पर हमें फाइनली अपने आउटकम को जनरेट करवा रहा है. So that is a block diagram representation for that. We are having the belief, we are having the desires, we are having the intentions, and we are getting the information from the sensors first. Sensors से आपकी information गई, perceive करा information में environment ने, it's a whole environment for that. Environment ने perceive करा, perceive करने के बाद act करा गया, यानी कि actions perform करे गए. Actions किसने perform करा, actions perform करे आपके acquisitators ने. Next is your hybrid architecture. As the name declares, hybrid यानी कि hybrid is the combination of the multiple architectures. चाहे वो combination कोई भी हो सकता है. It can be a combination of reactive or deliberative. It can be a combination of BDI architecture. It can be a combination of a blackboard architecture. Any architecture you want to combine for fulfilling our need. So it says that as in case in traditional software architectures, more architectures are now hybrid. For example, the architecture of network stack is made up of pipe and filter architecture and a layered architecture. जो आपका स्टैक का नेटवर्क है वो दोनों ही चीजों को यूज कर रहा है, यानी कि पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर को भी यूज कर रहा है और आपके लेयर्ड आर्किटेक्चर को भी यूज कर रहा है. So the same stack also shares some common elements of a blackboard architecture, as there are global elements that are visible and used by each component of the architecture. यानी कि जो आपका ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर है वो भी सिमिलरली कुछ इस टाइप का ही काम कर रहा है, वो सेम एलिमेंट को यूटिलाइज करके, क्योंकि इसमें मैंने कहा ब्लैकबोर्ड क्या है, आपका प्लेन ब्लैकबोर्ड है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें हम हर चीज हम डिक्लेयर करे जा रहे हैं, वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन है आपकी, और उस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे भी कहीं भी हम यूज कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर नीड. सो the same is true for the agent architectures based on the needs of the agent system. Different architectural elements can be chosen to meet those needs. तो अपने requirement के according, अपने need के according, we can have the hybrid combinations of these different architectures. Next is your mobile architecture. As the name declares, mobile, mobility is there. So the architectural patterns introduces the ability for agents to migrate themselves between the host. मेरे मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैंने इस आर्किटेक्चर को यूज करा, मे बी पॉसिबल कहीं और किसी और प्लेस पर कोई और मेरा जो फ्रेंड है वो काम कर रहा है, अब मैं चाहती हूँ कि उसी आर्किटेक्चर को यूज करके वो काम करना शुरू कर दे. तो वी शुड हैव द मोबिलिटी ऑफ दैट आर्किटेक्चर बाय विच वो आराम से वहां पर जाके अंडरस्टैंड करके काम कर सके. तो वो इतना फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए आर्किटेक्चर कि एनवायरमेंट को आराम से ग्रास्प कर सके और इजिली उसको हम हैंड ओवर करके हम काम करवा सके. सो द एजेंट आर्किटेक्चर इंक्लूड्स द मोबिलिटी एलिमेंट्स which allows an agent to migrate from one host to the another. आराम से हम चाहें तो, अगर उस आर्किटेक्चर में मैं काम कर रही हूँ, मैं एक होस्ट हूँ, मैं चाहती हूँ कहीं और उसको ट्रांसफर करना, तो इजिली वो कंफर्टेबली हम उसको ट्रांसफर कर सके. An agent can migrate to any host that implements the mobile framework, of course, and the mobile agent framework provides a protocol that permits communication between hosts for agent migration. ठीक है बेटा. Further, it is saying that the framework also requires some kind of authentication and security. Very much required, definitely, क्योंकि हम multiple host की हम बात कर रहे हैं. हमारे पास एक host है, मैंने कहा मैंने उस पर काम करा, अब मैं कहीं और वो काम ट्रांसफर कर रही हूँ,
तो we need of course the authentication as well as security to avoid a mobile agent framework from becoming a conduit for viruses. Also implicit in the mobile agent framework is the mean for your discovery. Of course, for example, which hosts are available for migration and what services do they provide, वो हमें clearly define करना चाहिए. Communication is also implicit as agents can communicate with one another on a host or across hosts in preparation for migration. यानी कि जो भी आप host use कर रहे हैं उसकी understanding होनी चाहिए, properly उसकी authentication security होनी चाहिए ताकि हम easily without the viruses attack, without the loss of information, हम आराम से उस information को transmit कर सके through that mobile architecture. The mobile agent architecture is advantageous as it supports the development of intelligent distributed systems. क्योंकि हमने कहा हम अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं, different places की हम बात करें, तो it is in your distributed environment. But a distributed system that is dynamic and whose configuration and loading is defined by the agent themselves. Definitely agents का काम क्या है, information को यहाँ से वहाँ transfer करना, information को capture करके उसका outcome को generate करना. तो definitely जो distributed system है उसकी इंफॉर्मेशन आपके एजेंट के पास रहेगी ही रहेगी, तभी आपका जो है वो हम मोबाइल एजेंट आर्किटेक्चर को इंफॉर्मेशन देंगे, तभी वो आगे आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा. तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, अ सिंपल 2 ब्लॉक डायग्राम फॉर द रिप्रेजेंटेशन. मान लीजिए ये मैं हूँ और मान लीजिए ये मेरे एक फ्रेंड का आर्किटेक्चर है. हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, वी आर हैविंग एजेंट्स आल्सो फॉर वर्किंग फॉर दैट पार्ट एंड मेंशन्ड है सेंसर्स और एक्चुएटर्स हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे. जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन को लिया, मेरे पास मल्टीपल एजेंट्स हैं मल्टीपल टास्क को अचीव करने के लिए. पूरे काम को फिनिश करने के बाद मैंने उस आर्किटेक्चर को फ्लेक्सिबली मैंने मूव करा फ्रॉम हियर इटसेल्फ टू माय फ्रेंड लोकेशन, दैट इज सिमिलर आर्किटेक्चर. यहाँ पर भी उस आर्किटेक्चर से इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसमिट हुई और वर्किंग का प्रोसेस आपका यहीं पर आपका स्टार्ट हो गया. थैंक यू सो मच.